Hi, good morning, everybody. So, my dear students, today we will discuss our chapter, our changing earth, and I have shared two videos with you in which first I have discussed the lithospheric plates and the volcano and the earthquake. Now we will take up with the further concept. Okay, so let's come. So, beta, in the earlier video, we have discussed about the damage and the destructions caused by the earthquake in Gujarat. And now let's take a small recap, a case study like earthquake hits Bhuj and a massive earthquake measuring 6.9 on the Richter scale hit Bhuj on towns 26 जनवरी 2001 कब आया था बेटा 26 जनवरी को 2001 में और उसकी तीव्रता कितनी थी 6.9 नाउ यू ऑल विल टेल मी व्हाट इज द रिक्टर स्केल व्हाट डू यू मीन बाय रिक्टर स्केल Richter scale is the scale that is used to measure the frequency or the speed of the earthquake. Okay, beta. Now, these are the consequences like स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड एक स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल तहस नहस हो गई थी बेटा बिल्कुल डैमेज हो गई थी और इन विच 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स लॉस्ट देयर लाइव्स ओके नाउ Bhuj रिलीफ एफर्ट ब्राइटेड ठीक है एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ Bhuj ओके एंड fire in the city hundreds of fire started as charcoal cookers overturned emergency declared in quake zone CM's appeal to the center okay so now all these were the case study and now at let me tell you beta when earthquake comes in a city or in a town every building especially near the epicenter got damaged completely. People lost their livelihood completely. The water supply, the electricity supply, and all the means of livelihood completely broke down. उनका कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है बेटा. The land broke down. The buildings just fall from the top to the ground level and turn into pieces and sands. Okay. Now and it takes lots of efforts, lots of money, time, and energy to develop the state again into the earlier case okay or earlier development ठीक है बेटा so now let's study something about earthquake do you know an earthquake is measured with a machine called a seismograph अर्थक्वेक किसके द्वारा मेजर किया जाता है बेटा सिस्मोग्राफ के द्वारा द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल एंड व्हाट इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल द मैग्नीट्यूड ओके तीव्रता उसकी स्पीड उसकी तीव्रता मापी जाती है बेटा रिक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफ पे एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ओके कि भाई आया है या नहीं आया है An earthquake of 2.0 or less can be felt only by a little. 2.0 तक का बस सिर्फ एहसास ही किया जा सकता है कि हाँ भाई आया था उससे डैमेज नहीं होता है An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. और जब एक अर्थक्वेक की तीव्रता 5.0 से ऊपर मापी जाती है बेटा तो डैमेज हो सकता है मतलब चीज़ें ऊपर से नीचे गिरने लग जाती हैं and 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as the major earthquake okay and the 7.0 में तो बिल्कुल ही डैमेज बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाता है बेटा ठीक है एंड 6.0 में भी हायर मैग्नीट्यूड में काउंट होता है सो नाउ वी कैन से 2.0 is less can be felt only by a little 5.0 can damage things from falling from top to bottom and 6.0 is considered very strong and 7.0 is classified as a higher earthquake okay students now this is a seismograph can you see this is a machine that is used to measure the earthquake okay my dear students so now let's read about earthquake preparedness okay where to take shelter during the earthquake okay suppose there is an earthquake occur in a town so what should be the precautions and what should be the should be done to keep ourselves safe okay so that the damage can be done by minimizing the efforts okay कि भाई कम से कम हमारे यहाँ पे नुकसान हो कम से कम जीवन का खतरा हो ओके सेफ स्पॉट
under a kitchen counter, table or desk, against an inside corner or wall. Okay, don't sit when earthquake came. Don't sit under the slab. Don't sit under the table or desk or a kitchen counter. Just hide inside yourself against the corner. जहाँ पे बेटा कॉर्नर होता है ना दीवारों के, जहाँ पे दो दीवार मिलती हैं एक रूम में, वो जो कॉर्नर होता है वहां पे खड़ा होना चाहिए, हमेशा हमेशा वहां पे खड़ा होना चाहिए, बिकॉज उससे आगे आगे गिरेगा जो कुछ गिरेगा, उस कॉर्नर पे कभी भी कुछ नहीं गिरता बेटा, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, जहाँ पे आग लगने की संभावना हो वहां से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज की, जहाँ पे चिमनीज वगैरह चल रही हो वहां से, बिकॉज जब अर्थक्वेक आएगा बेटा तो जो चिमनी वगैरह है वो फैल जाएगी और वहां से आग निकलेगी। फिर विंडोज डेट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, और जहाँ पे बेटा कांच लगा होता है ना, जैसे मिरर होता है, फैमिली फोटो फ्रेम होता है, ये सब जहाँ पे कांच होता है वहां से भी हमें दूर रहना चाहिए, बिकॉज जब अर्थक्वेक आएगा तो ये सब दीवार पे टंगे हुए होते हैं, और जब दीवार पे होते हैं तो बेटा जब अर्थक्वेक आएगा वाइब्रेशन की वजह से ये हमारे सिर के ऊपर भी गिर सकते हैं या हमारे पैरों में भी, या फिर हमें हार्म कर सकते हैं, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently, और हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इनके बारे में बताना चाहिए और इनको हिम्मत के साथ, पूरे स्ट्रेंथ और करेज के साथ फेस करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल रीड मेजर लैंडफॉर्म्स। ओके, the major landforms is being continuously worn away by two process, weathering and erosion. Okay, तो बेटा लैंडफॉर्म्स को बनाने में कौन से सबसे दो सहायक होते हैं? वन इज द वेदरिंग एंड वन इज द इरोजन। ओके, वन इज द वेदरिंग एंड वन इज द इरोजन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या कहलाता है? चट्टानों का टूटना, अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या होती है? इरोजन मीन्स दैट उनके ऊपर जो पत्थर टूट गए हैं उनके ऊपर हवा, बर्फ और पानी की वजह से एक सतह बनाना या उनको अपने साथ ले चलना। ठीक है बेटा, या तो उनके ऊपर एक सतह बना देना या फिर उनको अपने साथ ले चलना। जो पार्टिकल्स, जो रॉक, जो बड़े बड़े चट्टानों के पार्टिकल्स टूट के पृथ्वी की सतह पे बिखर गए हैं उनको अपने साथ ले चलना, और एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposit. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. Okay beta, now can you tell me, suppose like कि एक चट्टान टूट गई है, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर था वो टूट गया है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं, और कुछ बिल्कुल सैंड की फॉर्म में है और कुछ छोटे छोटे उसके पत्थर की फॉर्म में है। ठीक है, छोटे छोटे चट्टान होते हैं जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ मार्बल्स। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, तो क्या वो पार्टिकल्स बेटा अर्थ के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो बारिश आई है तो पानी के साथ बहेंगे नहीं। जब एक नदी वहां से बह रही है तो वो नदी के साथ नहीं बहने लग जाएंगे। जब हवा चल रही है तो वो जो मिट्टी के कण हैं उसमें नहीं बहने लग जाएंगे, और वो क्या करेंगे फिर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही क्या बन जाते हैं, फिर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि सपोज मैं कुछ बोर्ड पे चौक से लिख रहा हूँ, ओके, आई एम राइटिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ चौक, और जब आप देखते होगे, नीचे देखते होगे, जब मैं चौक से कुछ लिखता हूँ तो चौक के डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं ऑन द फ्लोर। आपने क्लासरूम में भी काफ़ी टाइम देखा होगा ये कि जो बोर्ड के नीचे वाली वॉल है वहाँ पे वाइट हो जाता है, और वो सब क्या होता है बेटा, वो सब सपोज करो कि एक चौक, एक चट्टान है और वो
नीचे पृथ्वी पे पार्टिकल्स में टूट गई है, टूटने के बाद वो हवा के साथ वो पार्टिकल्स बह जाते हैं और एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पे होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ आइस, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाते हैं और फिर क्या बना देते हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ओके, so now do you know there are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is the Angel Fall in Venezuela in South America. This is your MCQ question. Which is the highest waterfall in the world? The highest waterfall in the world is the Angel Falls, is the Angel Falls, and it is located in the South America. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA. Where is the Niagara Falls located? The Niagara Falls is located on the border of between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. Okay, so you will note it down. These do you know complete? Okay, you will note it down, you complete, and the definitions of weathering and erosion, and in the next videos we will study about rivers. Okay beta, thank you. I hope the concept is very much clear to you. We have studied earthquake, we have studied volcano, we have studied major landforms, and we have studied lithospheric plates. Now in the next video we will study about the work of a river. Okay, so this is the diagram I shall explain you in the next video. Thank you.